Different persons have different VNTR, and in DNA fingerprinting, VNTR are matched. Yes, variable number of tandem repeats. So these two are analyzed to find out the difference between the persons, or to find out or to solve any criminal cases or paternity issue, maternity issue, and it is also used in some evolutionary purpose. Let us see next one. Told you कि this VNTR and STR are what they are, mini satellites. ठीक है, satellites, mini satellites. तो satellite DNA means a repeated sequence of nucleotide on DNA strand. So if you find repeated sequences of nucleotide, so that can be of two type, microsatellite and mini satellite. If 1 to 9 nucleotides are repeated tandemly, then we call it microsatellite. और mini satellite क्या है कि if more than 10 or 10 to 60 nucleotides are tandemly repeated on DNA strand, then it is called mini satellite. And so we saw yesterday microsatellite can be repeated 50 times on the strand. It can be up to 200 times. VNTR is seen in human genome, and STR is seen generally in all organisms to find out the difference. But to find out in human differences in human individual, we saw, we see, or we have to analyze VNTR, or it vary person to person. VNTR is not same in all the person. It is different in different persons. So it vary person to person. That is why we can easily differentiate or solve the problems in forensic science. So the steps in DNA fingerprinting yesterday we discussed. The steps is idea tha. If you have to learn, so this mnemonics you can learn it easily, and the steps will be remembered by you easily. तो क्या है वो स्टेप्स? आई फॉर, एकदम जैसे मैं आई बोलूं आप तुरंत बोल दीजिए आंसर. आई फॉर DNA, isolation of DNA, and D for digestion or cutting of DNA. By which enzyme? Cutting is done by which enzyme? Right. E for electrophoresis. But here we do gel electrophoresis, and it is done to separate the fragmented DNAs on the basis of their densities, okay, and length. And the next A for amplification. Amplification is done by a process, by a reaction that is called PCR, polymerase chain reaction. ठीक है, it is done to increase the copy numbers of the sample. ठीक है. Now T is now you tell me A. This A is necessary everywhere in all in DNA fingerprinting process? No, it will be required only when you get yeah, a minute sample. When you have got a very minute sample from the crime scene or from the victims, जो भी है ना, victims से जो sample मिला है या फिर जो crime scene से जो sample मिला है, that is very minute in quantity. तो उस केस में हम कुछ कॉपी नंबर उसका बना के रख लेते हैं, so that if on during experimentation or during the process, if something is lost, so another copy will be remaining with you, with the scientist. And T4 transfer of DNA on nitrocellulose paper. You should keep this name very much clearly, keep in your mind, nitrocellulose paper. ठीक है, and it was done by EM Southern. So it is this process, this technique is called Southern blotting. And H4 hybridization with radioactive DNA, VNTR. DNA, no need to write. VNTR probes. Already prepared probes are there. Probes means होता है कि when we keep any sample, ठीक है, already prepared sample in your laboratory. If somebody has prepared some samples, complementary sample to the जो जो सैंपल आपको विक्टिम से या फिर किसी क्राइम सीन से मिला है,
तो बहुत सारे सैंपल्स बना के रख लेते हैं। तो दिस सैंपल्स और आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड सैंपल्स इन लैब्स इज कॉल्ड टोब, और VNTR का बहुत सारा सैंपल बना के रख लेते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड VNTR प्रोब्स, और इट इज रेडियो एक्टिव। ठीक है, सो दैट यू कैन विजुअलाइज इजिली। रेडियो एक्टिव इसको इसलिए कर देते हैं सो दैट यू कैन विजुअलाइज इजिली। एंड लास्ट स्टेप इज A, this A for auto, yes, auto radiography. And this auto radiography is generally we took what we took dark bands, we take मतलब जो fragments आपके जो मिलेंगे और जो hybridized DNA, you can visualize it on X-ray films। उस एक्सरे फिल्म्स में आप उसको देख सकेंगे। तो एक्सरे फिल्म में जब आपको दिखाई देगा तो वो एक डार्क बैंड की तरह दिखाई देगा, तो वो डार्क बैंड दिखाई देगा, और वी कॉल इट प्रोफाइल्स, वी कॉल इट प्रोफाइल। दैट इज वाई वी ऑल्सो कॉल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एज ए डीएनए प्रोफाइलिंग। ये जो डार्क बैंड दिखने की वजह से प्रोफाइल जैसा दिखेगा, सो वी कॉल इट डीएनए प्रोफाइलिंग ऑल्सो। तो लेट अस सी, तो दीज आर द प्रोसेसेस। तो एक एक करके थोड़ा देखेंगे हम प्रोसेस को। इसको देखिए थोड़ा, आप इससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। फर्स्ट स्टेप, आपको सैंपल मिला। आफ्टर टेकिंग दिस सैंपल you will extract DNA, you will isolate DNA from the blood cells। how will you extract the DNA? पहले इस सेल को डाइजेस्ट करेंगे। बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके यूज करते हैं ना, जैसे कि लाइपेज यूज करते हैं। अगर आपको डाइजेस्ट करना है लिपिड को तो डाइजेस्ट लिपिड, ठीक है, आपने पढ़ा भी है क्लास 11th में, डाइजेस्ट लिपिड। एंड प्रोटीएज इज यूज टू डाइजेस्ट व्हाट? Yeah, simple and which is clear from the name itself। And RNAs, इसमें थोड़ा RNAs भी होगा। RNA आपको नहीं चाहिए ना, तो RNAs निकाल लेंगे। RNAs किसको डाइजेस्ट करेगा? RNA को। RNA भी यहाँ से निकल चुका है, अब केवल बच गया DNA, and DNA can be isolated easily, extracted easily। Now DNA is isolated, first step isolation is completed। Second, then you have to cut this DNA strand। how? By restriction endonuclease enzyme। so you have got fragments, many fragments। अब इस fragments को आप कहाँ ले जाएंगे? you will put it into electrophoresis machine। electrophoresis machine, what do you mean by electrophoresis machine? I'll tell you this process। electrophoresis मतलब है movement of fragments on the basis of their densities due to effect of with effect of electric current। तो electric current is passed on, that is why electro word है, that means electric current will be supplied। तो when electric current is supplied, तो जो DNA fragments है they will start moving। ठीक है, they will start moving। अब मूव कैसे करेंगे आपको इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। लुक एट हियर, कल एक मशीन आपको दिखाया था, है ना, उस मशीन को फर्स्ट देख ले। वो डीएनए फ्रैगमेंट्स वाली इस तरह का मशीन होगा ये। दिस इज इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन। अब कल बता रहा था मैं कि दिस इज इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन। हियर इन दिस पूरे इस कंटेनर में आप देख रहे हो, इसमें क्या डालते हैं? एगारोस जेल। एंड वन मोर थिंग इज पुट हियर, दैट इज कॉल्ड इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, this is this solution is taken here, this gel is taken here, and that is why it is called gel electrophoresis, because of the presence of agarose gel and ethidium bromide। तो electrophoresis machine में आप देखेंगे it is connected with power supplier। ठीक है, तो इससे पावर सप्लाई करेंगे यार। here so many wells are there, wells कुआं जैसा है बहुत सारा, है ना। तो इस कुएं में क्या डाल देंगे? इस कुएं में we have to put the DNA samples। suppose you have taken the samples from 5 persons and one sample, this is sample, मान लीजिए this sample from crime scene। ठीक है, this is sample from crime scene। इसको हम P मानते हैं। ठीक है, नहीं इसको P नहीं लेते हैं, इसको हम लेते हैं I, तो इन्वेस्टिगेशन वाला, है ना। दिस सैंपल इज आई, मतलब जिसका हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और 3 लोग आपके पास हैं, A B C, 3 लोगों का सैंपल आपने लिया। ये तीनों के ब्लड सैंपल लेकर के इसका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया। इसका तो आप जो क्राइम सीन से जो लिए हैं उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करके
मतलब ये सारे के साथ वही काम करेंगे जितना प्रोसेस हम कर रहे हैं, इसके साथ क्राइम सीन से जो सैंपल मिला है वो सभी ये तीनों सस्पेक्ट जो है, दीज आर सस्पेक्ट, तो ये तीनों के डीएनए फाइंड आउट करेंगे, उसको फ्रेगमेंटेशन करेंगे, फ्रेगमेंट करके और उसको इसमें 11 जेल में डाल देंगे, एक एक वेल में, एक वेल में इसको डाल दिया आई को, दूसरे में ए बी सी, इस सभी डीएनए को डाला। डालने के बाद दे विल स्टार्ट मूविंग ऑन, दे विल, जैसे ही पावर सप्लाई स्टार्ट होता है एंड दिस डीएनए, यहाँ पर डीएनए बहुत सारे हैं, तो डीएनए विल स्टार्ट मूविंग ऑन द गैरोस जेल, तो द डीएनए विच इज शॉर्टर इन लेंथ दे विल मूव फास्टर, तो शॉर्टर जो लेंथ है वो आगे की तरफ जाएगा, और जो थोड़ा हेवियर है, जो लॉन्गर इन लेंथ है और हेवियर है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, जो हल्का वाला आगे आगे भाग जाएगा और भारी वाला वो पीछे रह जाएगा। इसी तरह से सबके साथ होगा, हल्का वाला आगे आ जाएगा, स्टार्ट मूविंग व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड एंड व्हेन इट इज व्हेन radioactive ray when radioactive ray is passed through it, is passed through it। ठीक है, ये सारे आप देख रहे हैं ABC, ये सारे डीएनए मूव होंगे इस तरह से। when radioactive rays pass through it, it looks orange in color। ये इसका कलर जो है ना, ये अभी ब्लू दिख रहा है, बट जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इसको विजुअलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, रेडियोएक्टिव रेज इज पास थ्रू इट, देन इट लुक्स ऑरेंज, एंड ये सारे जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं ये ऑरेंज दिखना शुरू कर देगा, तो ऑरेंज कलर में दिखेगा। ठीक है, एंड this is visible in radioactive rays and it looks orange due to presence of ethidium bromide, so it looks orange due to presence of ethidium bromide। this ethidium bromide is staining agent, ये staining के लिए यूज करते हैं, कलरिंग के लिए यूज करते हैं, so staining agent है, so due to presence of ethidium bromide it appears orange when radioactive ray is passed। इज इट क्लियर? अब ये डीएनए फ्रैगमेंट्स आप देखिए क्या है, यहीं ये पूरा जेल में है, ये सारे जेल में मूव हो रहे थे ना, अब क्या करेंगे, उसके ऊपर एक पेपर लेंगे, नाइट्रोसेलुलोज का एक शीट है, नाइट्रोसेलुलोज शीट, नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन इसको कहते हैं, नाइलॉन नाइट्रोसेलुलोज शीट। अब इस शीट को इसके ऊपर ऐसे रख देंगे, जैसे शीट को इसके ऊपर से रख दिया गया तो जितने भी डीएनए जो आप देख रहे हैं ये डीएनए उस शीट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब जो शीट आप फिर ऊपर से जब शीट को हटाएंगे तो वो शीट पर ये डीएनए सब आ चुका है, ये डीएनए लाइक इस तरह से इस डीएनए अब शीट पर ट्रांसफर हो गया। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड when the DNA is transferred to the nitrocellulose sheet, this process is called, this technique is called, जल्दी बताइए, अभी जस्ट डिस्कस किया है ना, transfer of DNA onto nitrocellulose sheet is called, yes, Southern blotting। So this now Southern blotting has taken place। अब ये सारे डीएनए यहाँ पर आ चुका है, अब देखिएगा सभी डीएनए इस पर ट्रांसफर हो गया है, इस शीट के ऊपर ट्रांसफर हो गया है, एंड दिस इज कॉल्ड साउथर्न ब्लॉटिंग, साउथर्न ब्लॉटिंग। अब देखिए क्या है कि ये शीट के ऊपर आपने क्या किया, थोड़ा सा मैं एक और स्क्रीन ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। अब ये देखिए आपके पास ये नाइट्रोसेलुलोज शीट है और इसके ऊपर IABC मान लीजिए, तो इसके ऊपर ये सारे डीएनए हैं। ठीक है, इस तरह से नाइट्रोसेलुलोज शीट के ऊपर है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेप होता है ना। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या किया कि जो प्रोब आपके पास है, प्रोब जो VNTR प्रोब्स जो ऑलरेडी आपके पास प्रिपेयर्ड है, वो VNTR प्रोब्स इसमें डाल देंगे, सभी डाल दिया, ऐसे करके उड़ेल दिया, कहते हैं ना, पूरा फेंक दिया। अब क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि यहाँ पर क्या सीक्वेंस है, इस डीएनए स्ट्रैंड में क्या सीक्वेंस है, इस डीएनए स्ट्रैंड में क्या सीक्वेंस है, तो ये जितने भी डीएनए आपके पास VNTRs है तो सभी इसमें फेंक देंगे, सभी उसमें डाल देंगे। तो अब इसके जो कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होगा उसके साथ वो क्या करेगा, इसमें ये डीएनए आप देखिए यहाँ पर, इसको थोड़ा मैं इस तरह से लेता हूँ, ये बहुत सारा आपके पास प्रोब ऐसे है, प्रोब है,
तो फेंक दिया। जैसे ही फेंक देंगे तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर करेगा और उसके साथ जाके यहाँ अटैच हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अटैच हो जाएगा। और तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया ना कि नहीं हुआ? टू डिफरेंट स्ट्रैंड्स आर मिक्स्ड विथ ईच अदर, तो दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। तो इस तरह का कुछ आपके पास आपको मिलेगा पैटर्न। और इस पैटर्न को देखने के लिए आप क्या करेंगे? हाउ कैन यू सी दिस पैटर्न? नेक्स्ट स्टेप, टेल मी। ओके, तो इस पैटर्न को देखने के लिए आप क्या करेंगे? यू विल पास एक्सरे। ठीक है, जब एक्सरे करेंगे और उसके ऊपर एक एक्सरे फिल्म रख लेंगे तो उस फिल्म पर इसका पिक्चर आ जाएगा। ये पिक्चर जब आप देखेंगे तो ये एक्सरे फिल्म पर इसका पिक्चर ले लेंगे। जैसे आपका एक्सरे होता है ना, जैसे हम एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे फिल्म पर आपका बोन्स का पिक्चर आ जाता है कि नहीं आता है? व्हेन वी गो फॉर एक्सरे इमेजिंग, तो एक्सरे फिल्म के ऊपर आपका जब मान लीजिए कि आप चेस्ट का एक्सरे कराया तो चेस्ट का जो बोन है, रिब्स, वो सभी दिखाई देता है ना। तो वैसे ही इसका एक्सरे पास करेंगे तो एक्सरे फिल्म के ऊपर इस तरह का पैटर्न दिखाई देगा, सेम पैटर्न, यही पैटर्न दिखाई देगा। तो ये पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। नाउ यू ऑब्जर्व दिस पैटर्न। दिस इज द दिस इज this is the VNTR pattern of criminal, sample which you got from crime scene, isn't it? And these are the suspect. Now you can tell me who is the suspect, मतलब who is the culprit, who is the criminal which have committed crime। अब बताइए, ये सारा पैटर्न देखिए, ये पैटर्न किससे मैच हो रहा है? किसके पैटर्न से मैच हो रहा है बताएंगे? यस, टेल मी, किससे मैच हो रहा है? ए बी सी किसका पैटर्न आई से मैच हो रहा है? See here na, 1 2 3 4 5 chromosomes here भी 1 2 3 4 5 chromosomes और exactly दोनों का distance भी same है। तो this B will be the culprit, no? So B is the culprit here, so we can identify, we can this profiling। and उसके बाद ये जो dark band, ये जो ऐसा band है ना, वो इस screen पे दिखाई देगा। this is X-ray film and this is then after visualizing the dark band DNA profile on the X-ray film, we can document it, we can write the report, who is the culprit. So that report writing is called documentation. Is it clear? Now you see this picture, all of you see this picture, see this one, this DNA from crime scene. This we have got DNA from crime scene, and observing chromosome number 7, chromosome number 2 and chromosome number 16। ठीक है, and suspect जो है, this is individual A and this is individual B, and you can see this pattern on where X-ray film पर आपको ऐसा pattern दिखाई दे रहा है, amplified repeats। Now see here, this is C मतलब crime scene, this है ना, और this two suspect। Now you tell me who is the culprit? See this C and this pattern, किससे ज्यादा मैच हो रहा है? C, B। So B is here either parent, अगर parent dispute है तो he will be the parent। ठीक है, और अगर क्राइम केस सॉल्व कर रहे हैं तो ये दिस इज द क्रिमिनल, बी इज द क्रिमिनल। सो पुलिस विल कैच दिस पर्सन कि इसी का सैंपल वहां पे क्राइम। माइक म्यूट कीजिए। ओके, डिड यू गेट इट? तो स्टेप में आपने यही किया, क्या क्या किया स्टेप हमने किया? फर्स्ट
what we did, electrophoresis किया, electrophoresis machine में then we transferred on this cellulose nitrocellulose paper ऊपर से रखा, तो इस पर वो ट्रांसफर हो गए सारे जीन, सॉरी सारे डीएनए. तो ट्रांसफर ऑफ दिस इज कॉल्ड व्हाट, साउथर्न ब्लॉटिंग. और उसके बाद आपने रेडियो एक्टिव प्रोब बनाया. तो कैसे बनाया, लैब में. दिस विल बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी एंड दिस प्रोब is put into this DNA probes binds to a specific sequence of DNA on nylon membrane. ये nylon membrane sheet है, उस पर जो DNA है उस पर वो bind कर जाएगा and you will get radioactive probe at this stage is bound to DNA pattern of the membrane और bind हो जाएगा, मतलब here hybridization has taken place. This is hybridization. And उसके बाद to detect it radioactive pattern, X-ray film is placed next to membrane. X-ray film is placed. So you will get such kind of pattern on X-ray film, and this is called dark band, and this dark band is called profile. This profile आपको मिला. This profile मिलने की वजह से we call it DNA profiling also. The X-ray film is developed to make the pattern of bands visible, known as DNA fingerprint. यही DNA fingerprint है या DNA profile है. And this process, this technique is called DNA fingerprinting. Any doubt? किसी को कोई डाउट है? Is there any doubt, children? Now see this. I'm asking you. This pattern we got. This pattern we are getting from the crime scene. When we are क्या क्या किया, पहला स्टेप हमने इसको जो क्राइम सीन से जो डीएनए मिला उस डीएनए को आइसोलेट किया फ्रॉम सेल से फिर उसको कट किया. कट करने के बाद क्या किया, कट करने के बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, सारे फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर लिया अलग अलग ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ एंड डेंसिटीज. एंड डेंसिटी और लेंथ के बेसिस पे सेपरेट हो गया जब इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड. देन वी पुट a nitrocellulose paper, so all the DNA got transferred onto nitrocellulose paper. and उसके बाद उस पर क्या डाल दिया, डीएनए प्रोब्स, VNTR प्रोब्स डाल दिए. देन इट इज हाइब्रिडाइज्ड और हाइब्रिडाइजेशन के बाद का ये पैटर्न मिला एक्सरे फिल्म पर. और क्राइम सीन जो थ्री सस्पेक्ट्स हैं. नाउ यू टेल मी which suspect is here criminal? Right, very good. Suspect 2, you can see this pattern 1 2 3 एकदम एग्जैक्टली सिमिलर है ये. तो इसका मतलब दिस इज द सस्पेक्ट, दिस इज द person who committed crime or who is parent of a child, if it is parental dispute is getting solved. Now what is the application of DNA fingerprinting? Simple है application, आप सब जानते हो, जरूरत नहीं है कुछ लर्न करने की. It is used as a tools in forensic test to identify criminals and criminal investigations. It is used to settle paternity disputes or maternity disputes. कोई मदर है वो बोल रही है मेरा बच्चा है, तो maternity dispute solve कर सकते हैं. It is used to determine population and genetic diversity also. हर किसी का डीएनए टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि हमारा डीएनए किसी और से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो टू स्टडी इवोल्यूशन, इससे पता कर सकते हैं कि हमारा इवोल्यूशन किससे हुआ. एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी. तो दीज आर द एप्लीकेशंस. नाउ यू कैन टेल मी एनी डाउट इज देयर, एनी डाउट, कोई डाउट है किसी को? स्टेप्स याद हो गया? थोड़ा स्टेप्स आप बताएंगे वन बाय वन. आइडिया था, सिंपल एन आइडिया था अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. ठीक है, आइडिया I4 फास्ट I4